Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. In today's session, we are going to study how to get the answer of main idea of the passage. We can also say central idea of the passage. So I will really help you out even if the level of difficulty is moderate or moderate to difficult. After this session, it will be easy for you to handle and to get the answer of main idea. But before getting the answer of main idea, we have to keep some significant things in our brain, right? जो मैं आपको आज की सेशन में बताने वाला हूँ. Let's start the session. Here is the title of the today's session: How to get main idea of the passage. First, let's understand what the term main idea is all about. Main idea is what? Main idea. The main idea is the point or message what an author presents and what a reader takes from the text. This thing we can also say literal versus intention. Literal versus intention. So what an author presents and what a reader takes from the text, we can say this is the main point or main message of the author that we have in the passage. Now, how do we get? Whenever you are finding the answer of main idea, na, just focus this thing. कि examine the title. Title means, इसको बहुत easily समझिए. Title means name of the movie. Suppose if name of the movie is पृथ्वीराज चौहान, तो स्क्रिप्ट तो बहुत ज्यादा होगा ना. और सिंपल वर्ड्स, लेट मी कंक्लूड. इफ यू हैव 100 वर्ड्स, सो टाइटल के लिए कितना वर्ड? जस्ट चेंज 100 वर्ड्स इनटू 4 and 7 वर्ड्स. सो 4 and 7 वर्ड्स, द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज विल बी योर टाइटल. मतलब टाइटल मीन्स नेम ऑफ द मूवी. 100 वर्ड्स को चेंज कर दीजिए कितना? 4 या 7 वर्ड्स में. सो एग्जामिन द टाइटल एंड देन स्किम द टेक्स्ट to determine who or what the reading is all about. So we don't need to focus every word, right? कि अपने को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं सिंगल वर्ड पे. All the words are not gonna give us the answer of main idea. मैं बताऊंगा कौन कौन से words will help us to find main idea in the passage. So examine the title. Title is what? What the passage is all about. Name of the movie. If you see the same word repeated, just see here. If you see the same word repeated, you know that is likely the topic or at least an important element of the topic. So जैसे आपने उसमें फाइंड किया कि बहुत सारे वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड फॉर्म में कोई वर्ड है, so means the whole passage is talking about that particular thing in the given passage. तो most repeated words ही क्या करेगा आपको? Will help you out to find the क्या main idea or at least an important element of the topic. The topic should be a noun or a noun phrases such as online education. Here is an example. So if somebody asks you what the main idea is all about, so in simple words we can say main idea is the main point or main message of the author, what an author presents and what a reader takes from the text. जो author बोलना चाह रहे अपने को वो exactly understand करना है with the help of the given information. हमको out of the box में मतलब ऐसा नहीं करना है कि पैसेज के बाहर जाने. आपको simply पैसेज के अकॉर्डिंग है. Try to think as broad as possible. Don't rely on specific part or specific words of the passage, because we can say those things. Agar if you rely on specific lines or specific words, so that information will be considered incomplete information. तो वो आंसर नहीं बनता है. So just remember what an author presents and what a reader takes. ये significant thing है. Literal versus intention. आपने translation किया या उसने आपने you try to understand कि क्या author का intention क्या है उस literal meaning में, right? Now, after doing these things, we can say, ask yourself questions about the text you read in depth. Pay close attention to introduction. Yes. इसका मतलब क्या हुआ? When you read any paragraph, when you read any passage, so focus more on introduction, the first sentence of body paragraphs and the conclusion. Doesn't mean कि आपको मिडिल पार्ट रीड नहीं करना है. I am just telling you focus more on the initial and last lines of the paragraph and passages, because these lines will help us out to find the right answer of the main idea, right? So but doesn't mean don't keep this simple thing, don't keep this thing in your mind कि सर ने बोला कि मिडिल पार्ट नहीं करना है. नहीं, focus more initial and last lines. मिडिल पार्ट पे बस go through करने. Now, so introduction, the first sentence of the body paragraphs and the conclusion. In these places, the author typically states and supports the main idea. So in introduction and in the conclusion,
वी कैन इजिली अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग द पैसेज कि उधर ही अपना ऑथर का इंटेंशन छुपा होता है। बट ऐसा नहीं है कि मिडिल पार्ट को आपको इग्नोर ही कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मिडिल पार्ट को अगर आप इग्नोर करोगे तो एलिमिनेशन विल बी डिफिकल्ट, राइट। हाउ कैन यू एलिमिनेट इनकम्प्लीट और अ पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ वाला ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शंस। सो मिडिल पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पर आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना है। और इनिशियल पार्ट एंड लास्ट वाला जो पार्ट है उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस पार्ट या दीज पार्ट्स ऑफ द पैसेज really help us out to find the answer of main idea. Now, after doing these simple things, ask questions. The questions to ask yourselves while reflecting. मतलब suppose you have read the passage, you have understood कि what the intention of the author in the given passage. So now it is a better choice कि अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, because if you have very close options कि 3 options close है, तो उसमें वो इट कैन बी डिफिकल्ट कि आप राइट ऑप्शन कैसे लोगे। तो आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, अ फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। व्हाट इज द मैसेज आई टेक अवे फ्रॉम दिस रीडिंग? व्हाट इज द मैसेज आई टेक अवे फ्रॉम दिस रीडिंग? ये आपको पहले करके चलना है। सेकेंड, व्हाट पॉइंट डज द इंफॉर्मेशन टू एड अप, राइट। कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है कि ट्रैवल भी किया, कॉलोनाइजेशन भी किया। अब नीचे देखा आपने तो ट्रैवल एंड कॉलोनाइजेशन के बाद ट्रेड भी उसमें गिवन है, तो ट्रेड ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को ऐड किया। सो ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं। मैं बात कर रहा हूं मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ पैसेजेस की, कोई ट्रिक नहीं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रूल। रैंडमली यू कैन अप्लाई दिस है ना रूल टू एनी पैसेज टू फाइंड द मेन आइडिया, राइट। आई कैन गिव यू दिस थिंग इन राइटिंग कि ऐसा कोई सेशन नहीं है कि आपको बहुत मतलब मैं ब्रेन वॉश करूं, सिंपली है कि जो चीजें अपने को फाइंड करना है मेन आइडिया में, द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मेन आइडिया, सो वो चीजें आपको करना ही पड़ेगा। इट विल बी इजी। आप रैंडमली किसी भी पैसेज पे चीज अप्लाई भी करके देखिए। व्हाट idea does the author reinforce in the conclusion? Because conclusion part क्या होता है, introduction and conclusion more significant होता है to find the main idea। ये हम we have understood sir, well done। Now let me give you an example। so मैं conclude करूं ये बात we have to keep in our mind while solving the question of main idea। the first thing कि sir what an author presents and what a reader takes from the text, मतलब literal versus intention, उसने क्या लिखा मैंने क्या समझा, इस पे ज्यादा एक तो फोकस करना है। सेकेंड थिंग करना है कि आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे फोकस मोर, बट डजंट मीन कि आपको मिडिल पार्ट बिल्कुल रीड नहीं करना है, पर उस पर फोकस ज्यादा नहीं करना है। यहां तक समझे। फिर फ्यू क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं जो मैंने यहां पर आपको बताया कि क्या मैसेज कन्वे किया है ऑथर ने, राइट कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसने ऐड किया है। बिकॉज जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू एलिमिनेट द क्लोज ऑप्शंस दैट वी हैव इन द ऑप्शंस कि यार सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मुझे फर्स्ट तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिया फॉर एन एग्जांपल, सेकंड भी आंसर लग रहा है, थर्ड भी आंसर लग रहा है, फोर्थ भी आंसर लग रहा है, अब मैं कैसे करूं। सो जो मिडिल पार्ट है वो आपको हेल्प करेगा एलिमिनेशन में, और जो आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है वो हेल्प करेगा एक्सीलेंट आंसर फाइंड करने में। कैसा आंसर? एक्सीलेंट, सपोर्टेड आंसर नहीं, एक्सीलेंट आंसर आपको फाइंड कराने में हेल्प करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने जो भी बात किया उसका कंक्लूजन मैं एक एग्जांपल के थ्रू देता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस आर अफोर्डेबल, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आर अफोर्डेबल। सेकेंड लाइन इज टॉकिंग अबाउट, सेकेंड पैराग्राफ, पीपल आर इंक्रीजिंगली कंफर्टेबल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, ये सेकेंड लाइन है यानी सेकेंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ, ऑनलाइन क्लासेस आर फ्लेक्सिबल, हमने कंक्लूजन निकाला हर पैराग्राफ से। रिलायबल इंटरनेट एक्सेस इज मोर कॉमन। सो नाउ वी कैन से कि बार बार किस चीज के बारे में बातें हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। फिर क्या हुआ, ये भी इससे रिलेटेड है, इंटरनेट कनेक्शन भी, पीपल आर इंक्रीजिंगली ऑन कंप्यूटर्स। सो मीन्स द जो रिपीटेड वर्ड्स है उसको मैंने कंक्लूड किया इन 4 पैराग्राफ्स का कंक्लूजन। मेन आइडिया मैंने किया कि व्हाई हैज ही और शी रिटन दिस पैसेज। सो मैंने देखा कि मोर फोकस ऑन ऑनलाइन क्लासेस इन एवरी पैराग्राफ, तो वी कैन से ऑनलाइन एजुकेशन इज इंक्रीजिंगली इन पॉपुलैरिटी। So we can conclude this passage कि this was the intention of the author while writing the passage कि उसने ऑनलाइन क्लासेस का बता रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन इज इंक्रीजिंगली इन पॉपुलैरिटी। सो हमने ये पार्ट कहां से लिया, जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में था, फिर हमने एवरी पैराग्राफ का क्या किया, जिस्ट निकाल के फुल पैसेज का मेन आइडिया निकाल दिया।
तो आई बिलीव यू आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट द मेन आइडिया इज ऑल अबाउट. How do we get the answer of main idea in our examination? Even if the level of difficulty is moderate and moderate to difficult, who cares? We don't care, because we don't rely on tricks, sir. And big thumbs up from my side. Because if we rely on tricks, तो then examiner is not a fool. Anytime, you know, हम confuse हो सकते हैं while solving, and chances are very high कि if we rely on tricks, अपना आंसर गलत ही होगा, because वो same option जो आपने tricks से निकाला है, you find in your options. Now let's try. So this is universal. Some efforts मांग आपको little bit मेरे साथ करना है, but then randomly आप किसी भी पैसेज में easily इसको solve कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, है ना, रियल एग्जाम्पल वी कैन सॉल्व हियर. सो फर्स्ट आप क्या कीजिए, इसको रीड कीजिए, देन आई विल लेट यू नो. आई बिलीव कि यू हैव रेड द पैसेज. नाउ सी द ऑप्शंस और अपना आंसर निकालने का कोशिश कीजिए. फील फ्री व्हाइल मेकिंग मिस्टेक्स. ट्राई टू मेक योर ऑनेस्ट एफर्ट्स कि व्हाट द पैरा समरी इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर व्हाइल राइटिंग. अपने आप से एक बार ऑनेस्ट एफर्ट्स करें, देन आई विल हेल्प यू आउट कि क्या है. तो चांसेस ये भी हो सकता है कि आप राइट आंसर ले लें, ये भी हो सकता है कि आपका रॉन्ग आंसर हो. हु केयर्स? वी डोंट केयर. बट द थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ वी वर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आस्क me and yourself कि why have we eliminated. Suppose कि correct answer is A, you are saying B, so just try to take the answer of this thing कि why have you eliminated B, C and D option. Because if you take only the right answer, right, so chances are very high कि repeat आप करोगे mistakes को. But if you are understanding कि why have we eliminated B option, C option, D option, so it will be easy for you to find the main idea in coming passages. Now, let me start the passage. So both Socrates and Bacon were very good at asking useful questions. Introduction part we have here. So both Socrates and Bacon means the whole passage में सबसे ज़्यादा repeat होने का chances है. Socrates is largely credited with coming up with a way of asking questions, the Socratic method, which itself is at the core of the scientific method, popularized by Bacon. The Socratic method disapproves arguments by finding exceptions. So here is that we can say कि the method that Socratic used, है ना, तो वो क्या है, we have here कि Socratic method was कि disapproves arguments by finding exceptions to them and can therefore lead to your opponent to a point where they admit something that contradicts. ठीक है. So अपने पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इंट्रोडक्शन में मेरे लिए सिग्निफिकेंट क्या था, बेकन एंड सॉक्रेट आस्किंग यूजफुल क्वेश्चंस. हियर सॉक्रेट का मेथड गिवन है, बाकी इतना अपने लिए बेनिफिट नहीं है. नाउ बढ़ते बढ़ते लेट्स सी हियर. नाउ इन कॉमन विथ सॉक्रेट्स, कॉमन में क्या था कि any argument just try to disapprove that after finding some exceptions. It was the method of Socrates that according to the passage, right, never think about कि मुझे ये आता है और पैसेज वो बोल रहा है, तो अपना नॉलेज नहीं उसमें लाना बिल्कुल भी. जो पैसेज में गिवन है एज इट इज अपने को बात करनी. Now Bacon stressed because the method of Socratic was popularized by किसने, बेकन ने. So बेकन ने उसको improve किया because Socrates only believed कि disapprove करो by finding exceptions. But Bacon stressed it was as important to disapprove a theory as it was to prove. But Bacon ने उसको stress किया. Now we can say कि उसने कुछ changes किया. Bacon made some changes in Socratic method and he came to know, he decided कि जितना significant disapprove है उतना ही significant prove है. So we can say कि now the whole passage is talking about the method of Socrates and Bacon. This was the main intention of the author कि Socratic method was disapprove argument by finding exceptions and Bacon stressed and method was disapprove and prove किस पर, real world observations and experimentation were key to achieving both aims. Bacon also saw science as a collaborative affair with scientists working together challenging each other. So I believe you have understood what the whole summary, what the passage या paragraph is all about. Now let's see option.
and try to take the help of elimination, because elimination is really significant while finding the answer. Now, A option is talking about both Socrates and Bacon advocated clever questioning. Yes, this is good word, because useful questions and clever questions, yes, of the opponents to disapprove their arguments and theories. So this part we can say this is till here the option is as per the paragraph, because both Socrates and Bacon advocated clever questioning. We have seen at कहाँ पे इंट्रोडक्शन में, और उसका बेकन का भी और सॉक्रेट का भी. So इसमें तो ये क्लेवर तो ठीक है, but just see here both Socrates and Bacon advocated clever questioning of the opponents to disapprove theory. ये disapprove करना किसका था according to paragraph? Socrates का. Bacon किसमें believe करता था? Disapprove and approve in both the aspects, right? So this option is talking about incomplete information. कैसा? Supported information. We can say incomplete information we have according to the para summary, because ये part केवल disapproval के बारे में बात कर रहे हैं, while ये किसका मेथड था डिसअप्रूव करना एज पर द पैरा समरी? ये मेथड था सिर्फ सॉक्रेट का. सॉक्रेटिक मेथड क्या था इधर कि अपना डिसअप्रूव करो बाय फाइंडिंग एक्सेप्शंस, बट बेकन ने उसको स्ट्रेस किया एंड द मेथड जो बेकन ने यूज किया वो डिसअप्रूव एंड वाज टू प्रूव. तो वी कैन से कि द ऑप्शन इज ओनली टॉकिंग अबाउट वन साइडेड इंफॉर्मेशन, और वो वन साइडेड इंफॉर्मेशन क्या है कि डिसअप्रूव करो थ्योरी को. ये दोनों का बेकन एंड सॉक्रेट का था? नहीं, ये सिर्फ सॉक्रेट का था. तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं फर्स्ट को में. ये इजी टू एलिमिनेट ऑप्शन है. नाउ सेकंड, बोथ सॉक्रेट्स एंड बेकन एडवोकेटेड चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्योरीज बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, ये ऑप्शन को मैं कंसीडर करके चलूंगा, बट अभी मैं देखूंगा बेटर एंड बेस्ट आंसर में, राइट? तो अभी बेटर एंड बेस्ट आंसर देखता हूं, इसको मैं भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं. लेट्स सी अनदर ऑप्शन. अनदर ऑप्शन इज सेइंग both Socrates and Bacon advocated confirming arguments. ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा मुझको ज्यादा कैसा लग रहा है, एक्सट्रीम लग रहा है, बिकॉज वो कंफर्म नहीं करते थे. एंड थ्योरीज बाय फाइंडिंग एक्सेप्शन. सर इसको एलिमिनेट कर दीजिए. क्यों एलिमिनेट कर दीजिए? क्योंकि दिस थिंग इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. ये एक्सेप्शंस को फाइंड करना सिर्फ कौन बिलीव करता था? सॉक्रेट्स. एज पर द थ्योरी सॉक्रेट बिलीव करता था किस चीज पर? मेथड वाज की disapprove argument by finding क्या? By finding exceptions. By finding disapprove argument by finding exceptions. ये था सॉक्रेट का मेथड. लेकिन बेकन क्या करता था? सिर्फ एक्सेप्शंस ही नहीं, द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट डिसअप्रूव एंड प्रूव करो. किस पर? उस पर रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. एज सिंपल एज नाउ. सो वी कैन एलिमिनेट द सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन, है ना? देयर इज नो रॉकेट साइंस टू एलिमिनेट दीज ऑप्शंस. नाउ लेट्स रीड द D1 आगे, है ना? ये बचा है अभी. बोथ सॉक्रेट्स एंड बेकन एडवोकेटेड एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स. तो एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स इज बेटर वर्ड देन चैलेंजिंग. ठीक है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. लेट्स रीड अनदर थिंग, अनदर पार्ट ऑफ द ऑप्शन. एंड थ्योरीज फ्रॉम बोथ साइड्स टू प्रूव देम. अब देखो, नाउ जो भी आपका आंसर आया है, मैं आपको पहले अप्रिशिएट करता हूं कि यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑप्शंस. ए एंड सी हमने एलिमिनेट कर दिया. वी कैन एलिमिनेट, एनीवन कैन एलिमिनेट. दिस कैन आल्सो बी द आंसर, दिस कैन आल्सो बी द आंसर. नाउ आई शुड हैव एटीट्यूड, आई हैव द प्रूफ कि जो भी ऑप्शन में उसको एलिमिनेट करूं. तो मैं बी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास एटीट्यूड रखता हूं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, द पैसेज, द इंटेंशन ऑफ द ऑथर. क्यों? क्योंकि एक तो जो चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स है, ये चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स एक बेटर वर्ड नहीं है एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट के कंपैरिजन में. सेकंड थिंग क्या है? थ्योरीज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ऑथर का इंटेंशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर है. ऑथर मोर फोकस कर रहे हैं कि सॉक्रेट का मेथड क्या था? एग्जामिन करो और क्या करो? डिसअप्रूव कर दो. और बेकन का मेथड क्या था? कि प्रूव कर दो. डिसअप्रूव एंड प्रूव दोनों कर दो. तो दिस ऑप्शन बोथ सॉक्रेट्स एंड बेकन एडवोकेटेड एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स, एक तो इससे ज्यादा बेटर वर्ड अपने पास. दिस इज द रीजन. अनदर थिंग जो मेरे को बिल्कुल एटीट्यूड यानी बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना रहा है कि थ्योरी फ्रॉम बोथ साइड. बोथ साइड कौन कौन सा थ्योरी था? डिसअप्रूव कर दीजिए एंड अनदर इज अप्रूव. सो दिस थिंग इज, दिस ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कि व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट. कि पैसेज इज ऑल अबाउट द मेथड दैट was used by Bacon and as well as Socrates. So we have the whole passage is talking about these things, the methods of Socrates and Bacon. So as per the paragraph, as per the para summary, correct answer will be D. Right? I believe you have understood what the term main, what the main idea term is all about. How do we get the answer?
कौन कौन सा points we have to keep in our mind while finding the answer. Another thing, we have solved one passage, real passage, the moderate to difficult type of passage. So now you can apply this thing to any passage, right, while finding the main idea of the passage. So that's it from my side. I believe कि you have enjoyed the session and you have learnt at least what the main idea is all about and how do we eliminate the options.